Good evening, everyone. So, in our previous class, we had discussed nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. We saw all possible nucleophiles and what products are formed upon replacement of halogen by those nucleophiles. Today, we are going to discuss mechanism for nucleophilic substitution reaction. Two different mechanisms we will be taking, SN2 and SN1. Where SN2 means substitution nucleophilic bimolecular reaction and SN1 stands for substitution nucleophilic unimolecular reaction. Now here I have shown an alkyl halide molecule, a very simple alkyl halide I have taken. This is methyl chloride or chloromethane. You can see chlorine atom is having a partial negative charge, carbon atom is having a partial positive charge. How? That we have already seen in the nature of carbon halogen bond. Now, chlorine is bearing a partial negative charge and the nucleophile is also negative charged. So that's why the nucleophile cannot approach towards this carbon atom from this direction where the halogen atom is present. Why? Because there may be a possible repulsion. Repulsion हो सकता है and it may not lead to the formation of product. So that's why nucleophile here is attacking from the direction just opposite to carbon halogen bond. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पीठ पे वार, है ना. दिस इज अ स्लो स्टेप एंड अ ट्रांजिशन स्टेट इज गेटिंग फॉर्म विच डू नॉट हैव अ रियल एग्जिस्टेंस. अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 बॉन्ड दिखाए हैं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड हो. दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन स्टेट. With the help of this, you have to understand that strengthening of carbon nucleophile bond is taking place here and here weakening of carbon halogen bond, and both the process takes place simultaneously. Strengthening of carbon nucleophile bond and the weakening of carbon halogen bond, and then it results into formation of product methyl alcohol and chloride ion, which is the living group. The interesting part here is the product which is formed has configuration just inverted. Configuration stands for spatial arrangement of atom in space. Like suppose right now this is methyl chloride. The black sphere is carbon, green one is halogen or chlorine atom, and remaining all white ones are hydrogen atom. So this is the arrangement of atom in space, and when this chlorine is getting replaced by OH, the spatial arrangement is like this. So what you can see that the spatial arrangement of this molecule has just inverted, पूरा उल्टा हो गया नहीं. So that is why we are getting inversion of configuration in SN2 reaction. SN2 में आपको क्या मिलेगा? Inversion of configuration. Product will have inverted configuration compared to the reactant. Okay. Another important part related to this, we call it substitution nucleophilic bimolecular reaction. Now why such name is given? The reason behind it is, in the slow step, you can see there are 2 molecules whose concentration will be affecting this reaction. It is said that molecularity of reaction is 2. And the molecularity of slowest step is the order of reaction. This you will be studying in chemical kinetics, a chapter in physical chemistry. So this actually shows that the reaction is following a second order kinetics
and as it follows second order kinetics, that is why substitution nucleophilic bimolecular. Simple. Let's see reactivity of different alkyl halides for SN2 reaction. We know very well that alkyl halides are of the types primary, secondary and tertiary. So one by one we will be discussing their reactivity towards SN2. But before that, let me draw the three-dimensional structure of the alkyl halides. ये हर एक टाइप के alkyl halides का एक three-dimensional structure मैं यहाँ draw करता हूँ. So the first one I am drawing is methyl halide, and methyl halide is same as what we have drawn over here. This one is methyl halide. Then second I am drawing this is primary alkyl halide. This one is primary alkyl halide. Next I am drawing secondary alkyl halide. And the third one I am drawing is tertiary alkyl halide. Okay. And in each case, consider a nucleophile slowly approaching towards the carbon atom. हर एक केस में think about the approach of nucleophile. The reactivity of alkyl halides for SN2 depends completely on ease with which nucleophile can attack the carbon. जितना easily nucleophile कार्बन के क्लोज आकर उस पर अटैक कर पाए उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा. अब यहां देखिए, यहां पे जो ये एटम्स है ना, these are very small, छोटू छोटू हाइड्रोजन एटम्स. These are very छोटू hydrogen atoms, isn't it? So nucleophile can easily pass these hydrogen atoms and can approach on this carbon atom. इस पे अटैक कर सकता है. But here this hydrogen atom is small, this hydrogen atom is small, but this is a bulky alkyl group. ये कैसा alkyl group है? Bulky. तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच किसमें ज्यादा इजी होगा? इन दोनों में से किस केस में न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन एटम पे अटैक कर पाएगा? हाउ? सेकंड वाले में. सेकंड वाले में तो ये बल्कि अल्काइल ग्रुप आ रहा है. ये बोर्ड पे आपको यहाँ स्पेस दिख रहा है, लेकिन इसकी जब एक्चुअल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इतना स्पेस नहीं होता. इजी इस केस में है. यहां पे न्यूक्लियोफाइल को काफी स्पेस मिल रहा है टू अप्रोच कार्बन, लेकिन यहां पे स्पेस में क्राउडेड दीज अल्काइल ग्रुप्स विल क्रिएट हिंड्रेंस इन द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स कार्बन. ये हिंड्रेंस, ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा न्यूक्लियोफाइल के को इसके क्लोज इजिली नहीं आने देगा. तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अब देखो कितना सिंपल हो गया. यहां पे तो आपके दो बल्कि अल्काइल ग्रुप आ गए.
और एक ही छोटू सा हाइड्रोजन एटम है. डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच कार्बन कंपेयर्ड टू दीज टू केसेस. तो रिएक्टिविटी इज अगेन गेटिंग लोअर्ड. और ये वाला केस देखिए, यहां पे ये बल्कि अल्काइल ग्रुप, ये बल्कि अल्काइल ग्रुप, ये बल्कि अल्काइल ग्रुप. न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिल रही, इतना हिंड्रेंस है, इतना ऑब्स्टेकल है, इट कैन नॉट रीच टू द कार्बन एटम. सो द लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड. सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN2 में किसकी? मिथाइल हैलाइड की. उससे लेस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उससे लेस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किसका होगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड. फाइन. और इसका सिंपल रीजन क्या होगा? सिंपल रीजन इज दैट इन मिथाइल हैलाइड smaller hydrogen atoms are surrounding the carbon, so very easy for nucleophile to attack on the carbon atom, whereas in other cases gradually the bulkiness of alkyl group keeps on increasing, steric hindrance or obstacle is created in the path of nucleophile, and the approach of nucleophile towards carbon gets difficult. That is why reactivity decreases. है ना easy? Simple है. चलो. Let's discuss the second mechanism now, which is substitution nucleophilic unimolecular. मैंने यहाँ एक SN1 reaction का example लिखा है. This is not the mechanism. I have just written the example. And let us see how this reaction is following SN1. What is SN1 and how does it follows SN1 reaction? ठीक है. तो सबसे पहले इसमें दो स्टेप है. इसका स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं. स्टेप 1 इज this is a step 1. Can you identify this molecule? इस molecule को identify कर सकते हो? What is the IUPAC name of this? This is 2-bromo 2-methyl propane. कह सकते हैं, और यू कैन कॉल इट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. दिस इज कॉमन नेम. सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज आयोनाइजेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, विच इज स्लो स्टेप. कैसा स्टेप है ये? स्लो. आयोनाइजेशन. तो आयोनाइजेशन में क्या होगा? आयोनाइजेशन में यू नो वेरी वेल दैट दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ब्रोमीन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. सो दिस विल cause a complete transfer of electron या heterolytic fission here, and this heterolytic fission will give you bromide ion Br minus, और इसके साथ क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन will be formed. ऐसा कार्बोकैटायन होगा. This one is carbocation, a positive charge on the carbon, and Br minus, that is bromide ion. Easy. पहला स्टेप क्या है? आयोनाइजेशन. That means the cleavage of carbon halogen bond. कैसा फिशन है ये? हेट्रोलिटिक. तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा and the halide ion will be removed. Okay. What you can see here, that again the slow step, rate determining step, depends on the concentration of only one molecule here. कोई दूसरा molecule तो है नहीं, यही है, तो इसी के concentration पे depend करेगा. इसीलिए ये reaction क्या हुआ? Unimolecular.
ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, इट विल बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आई कैन अंडरस्टैंड अभी आपको ना ये ऑर्डर समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा, डोंट वरी, इन केमिकल काइनेटिक्स वी हैव अ कंप्लीट चैप्टर देयर जहां पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी बात करेंगे। लेकिन ये समझना अभी बहुत इजी है दैट व्हाई इट इज यूनिमोलिकुलर, और हमारा पर्पस भी वही है। इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन द स्लो स्टेप, देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, एक ही मॉलिक्यूल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन को अफेक्ट करेगी, इसीलिए ये क्या हुआ, यूनिमोलिकुलर। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है, दिस कार्बोकैटायन विल बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन विल बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो मैं यहां पे कार्बोकैटायन बना रहा हूं फिर से, दिस इज द कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। सो सिंपली दिस अटैक over here on the carbon atom and the product is formed. क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, this is the product formed here। यहां पे right now इस मैकेनिज्म में what I have presented over the whiteboard, इससे साफ दिख रहा है that the product is having configuration same as the reactant। देखो यहां पे भी हाइड्रोजन राइट की तरफ था, here also the nucleophile is towards the right, बाकी सब कुछ सेम है। तो the configuration of the product is same as configuration of reactant, इसको कहते हैं retention of configuration। क्या कहा जाता है इसे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी वो रिटेंड हो गई, रिटेंडेड रही, वही कंटिन्यूड रहा, राइट। सो दिस इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, कॉमन नेम ही लिखूं, टर्शरी ब्यूटाइल alcohol, easy, tertiary butyl alcohol। Now just 2 minutes, please try to understand the mechanism as well, mechanism के साथ साथ try to understand the reactivity as well। Here what you can see that in the step 1 a carbocation is getting formed and then the nucleophile is attacking over the carbocation, right? So here the complete reactivity is dependent on stability of carbocation formed as intermediate। यहाँ इस SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट होगी, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे। आपको इंटरमीडिएट में जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। अब आप मुझे ये बताइए, लेट अस कंसिडर मिथाइल हैलाइड। अब यहां पे ना सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ RX, RX का मतलब हुआ अल्काइल हैलाइड फॉर SN1, और यहां पे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग ओनली द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स। जैसे मैं लिख रहा हूं CH3X, फिर मैं लिख रहा हूं CH3CH2X, देन आई एम राइटिंग CH3 होल ट्वाइस CHX एंड फाइनली CH3 होल थ्राइस CX। ये क्या है, मिथाइल हैलाइड। हर्षित, मिथाइल हैलाइड
दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर इसकी SN1 प्रोसेस को कंसिडर करें तो बाय आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड और बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यहां पे आपको मिलेगा मिथाइल कार्बोकैटायन, यहां मिलेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहां क्या मिलेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और इस केस में मिलेगा टर्शरी कार्बोकैटायन। Now without taking a even single second, tell me out of all these different carbocations which is most stable? टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होनी चाहिए SN1 में? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, टर्शरी कार्बोकैटायन के बाद इसमें से किसकी स्टेबिलिटी? सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी इज लेस रिएक्टिव देन टर्शरी। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? प्राइमरी। और सबसे लेस रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड, राइट? यही होगा ना? सो फॉर SN1 रिएक्शन द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN1 में अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप 1, and the most stable carbocation in the alkyl halides is tertiary carbocation. So highest reactivity इसमें किसकी होगी? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी, उससे कम रिएक्टिव प्राइमरी, और इससे कम मिथाइल हैलाइड। अब आप जरा ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन SN2 हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट? आप देखो, दिस इज जस्ट अपोजिट टू दैट, नहीं? SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी प्रथम हमने डिस्कस की थी उसके कंपैरिजन में ये रिएक्टिविटी जस्ट उल्टा है या नहीं? इसके अलावा दो एडिशनल चीजें और बता रहा हूं। आप देखो, अभी तक SN2 और SN1 की मैकेनिज्म में हमने सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स का डिस्कशन किया। आई हैव नॉट टेकन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड, आई हैव नॉट टेकन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। बट थिंक अबाउट देम नाउ। अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब देखिए, यहां पे मैं एक अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल ऐसा करता हूं, यहां अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल लेता हूं, यहां बेंजाइलिक हैलाइड का ले लूंगा। तो अलाइलिक हैलाइड में आई एम टेकिंग CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 एंड हैलोजन, राइट? इससे आयोनाइजेशन के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, दैट कार्बोकैटायन इज दिस इज द कार्बोकैटायन। यही होगा ना? इसको क्या कहेंगे? अलाइलिक कार्बोकैटायन। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट अलाइलिक कार्बोकैटायन अंडरगोज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। ये अलाइलिक कार्बोकैटायन का रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होता है। This undergoes resonance stabilization। मतलब ये अलाइलिक कार्बोकैटायन कैसा कार्बोकैटायन है? स्टेबल होगा ना? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन हुआ तो अलाइलिक कार्बोकैटायन इज स्टेबल। और अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो कौन सी मैकेनिज्म? इफ द कार्बोकैटायन इज स्टेबल, इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होनी चाहिए? SN2 या SN1? SN1। स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है इसलिए यहां पे SN1 फॉलो होगा, राइट? इसी तरह लेट्स टॉक अबाउट दिस बेंजाइलिक हैलाइड आल्सो। ये बेंजाइलिक हैलाइड लिया और इसका सिर्फ मैं आयोनाइजेशन शो करता हूं। आई एम शोइंग द आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में क्या होगा? यहां से the complete transfer of electron results into
positive charge on carbon atom, right, and halide ion. ठीक है, लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि ये जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, इस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का आगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है. दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. हाउ? तो आप देखिए यहां से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 है ना. सो और पॉजिटिव चार्ज भी है, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम ओवर हियर. देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया? रिंग के कार्बन एटम. इसी तरह आगे ये रेजोनेंस कंटिन्यू कर सकते हो. दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, देन पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर, राइट, एंड देन फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर. इन शॉर्ट, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन अंडरगोस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. सो कैसा कार्बोकैटायन हुआ? ये स्टेबल हुआ, स्टेबल कार्बोकैटायन हुआ. कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN1. इजी. दिस इज very very important topic. Let me add this, that you can never have a question paper where haloalkane haloarine is there in the syllabus and you don't have question related to reactivity order of alkyl halides for SN2 और SN1. ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे. ऐसे स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा that which among these two compound is more reactive towards SN1. This is more reactive towards SN1 और रीजन भी पूछा जाएगा why. तो you will have to explain that. करेक्ट आंसर चाहिए कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है और उसका रीजन. यहां रीजन होगा कि दिस फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. ओके, चलिए एक और इसमें रिएक्टिविटी रिलेटेड पार्ट है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं. आई डोंट हैव स्पेस राइट नाउ. चलो पहले नोटेड. सो वी हैव डिस्कस्ड SN2 एंड SN1 रिएक्शन बोथ. A very small part is left in that related to the reactivity of alkyl halides in SN2 as well as SN1, and that is, let us consider different alkyl halides: alkyl fluoride, alkyl chloride, alkyl bromide and alkyl iodide. Alkyl groups are the same, halogen atoms are different. And then consider their reactivity both in SN2 and SN1. They follows the same reactivity order both in SN2 and SN1. And it is very simple. Here the reactivity depends upon the carbon halogen bond length, and which further depends on size of halogen atom. Halogen atom का size जितना बड़ा, carbon halogen bond उतना ही बड़ा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बड़ा वो बॉन्ड उतनी इजीली ब्रेक हो पाएगा, राइट. तो द हाईएस्ट रिएक्टिविटी इज अल्काइल आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम रिएक्टिव अल्काइल क्लोराइड और सबसे लीस्ट अल्काइल फ्लोराइड. और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दोनों ही मैकेनिज्म में फॉलो होगी, बोथ इन SN2 एज वेल एज इन SN1. तो both in SN2 and SN1 order of reactivity is this. इसको आप अगर क्वेश्चन में अगर आंसर के फॉर्म में लिखना हो कहीं आइडेंटिफाई करके, तो आप लिखोगे because the halogen atom with the increase in size becomes a better leaving group. halogen का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही बेटर
लीविंग ग्रुप बनेगा. फाइन. सो आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन, bromine is a better living group than chlorine, and chlorine in turn is a better living group than fluorine. So that is why this order of reactivity follows. Okay. Now few minutes back I was having this question from your side that what kind of question will be asked in board examination related to this topic. अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये सेम क्वेश्चन और इसके तरह के ही कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे गए. ईयर आफ्टर ईयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. आप देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वन अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई. इन पेयर ऑफ कंपाउंड्स में SN2 फास्टर किसमें होगा और क्यों. तो पहले वाले में आप देखिए आइडेंटिफाई द टाइप, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. दिस इज प्राइमरी साइक्लो अल्काइल हैलाइड, नहीं साइक्लिक ग्रुप भी है यहाँ पे. एंड दिस इज सेकेंडरी. कैसे सेकेंडरी है, देखो हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट. सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी. अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा है. टेल मी SN2 में which is more reactive, primary alkyl halide or secondary alkyl halide. Primary alkyl halide is more reactive. और reason क्या दोगे? Because it is easier for the nucleophile to approach towards this carbon due to the smaller hydrogen atoms available on it. Primary alkyl halide में दो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है तो न्यूक्लियोफाइल वहां इजिली अप्रोच कर पाएगा. जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में इधर भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल के लिए इट इज डिफिकल्ट टू अटैक. फाइन. आ जाएगा आंसर, लिख पाओगे. तो द आंसर फॉर दिस इज ये ज्यादा रिएक्टिव है और रीजन भी आप समझ गए. दूसरे में पूछ रहा है वी हैव आयोडोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन. SN2 में रिएक्टिविटी बतानी है. तो यहां पे देखिए दोनों है प्राइमरी ही, लेकिन यहां ये वाला कॉन्सेप्ट यूजफुल है. आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन, सो मोर रिएक्टिव इज आयोडोब्यूटेन. आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है तो इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. ठीक है. इसी तरह इन NCERT also you have few questions based on this topic. I will be pointing those questions. This is for you as well, those who are watching this video right now. See, you have in text question number 10.7 and 10.8, solved examples 10.6 and 10.7, and in exercise you have question number 10.9 and 10.16. ये इतने क्वेश्चन जो हैं वो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स इन SN2 और SN1 पे बेस्ड है. ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, इन टुमारोज सेशन, वी विल डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद देयर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स. We will see stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स को तो आज प्रिपेयर करोगे ही, साथ में कुछ आई थिंक एक मंथ पहले आपको मैंने हाइड्रोकार्बन्स और उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का. ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, वो पोर्शन आप रिवाइज करके आओगे. Come those portion revised, then you will be understanding tomorrow's session much better. Okay, fine. Bye everyone. Keep working hard, and if you have any question, then please mention that in the comment section. Take care.